लिए होंगे पहले से हम आपको बताएंगे now we talk about how to produce production technique I'm talking about the production technique समझ में आ रही है प्रोडक्शन टेक्निक अब प्रोडक्शन टेक्निक में वो जो टेक्नोलॉजी है वो लेबर या गुड जो बनाने जा रहे हैं वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव I mean, labor intensive means whether we are using maximum of labor to produce that good or maximum of capital. लैपटॉप बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। मोबाइल बनाने जा रहे हैं तो हो सकता है ठीक है ना इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है कि ये कैब बनाने जा रहे हो सकता है इसके अंदर उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना हो रही हो। कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहता हो पाकिस्तान में कॉटेज इंडस्ट्रीज बहुत काम करती है घरेलू घर में काम हो रहा होता है so therefore we are using maximum of labor so first period अब समोसा बना रहे हैं होटल में तो कौन सी मशीन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं लेबर only so therefore first decided okay खेत में काम हो रहा है तो वहाँ पे पाकिस्तान से देखेंगे ये उस मुल्क की टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कितना ज्यादा है they can use both in the field in the farming they can either utilize labor and capital that depends upon the nature of the economy if as far as you are in Europe they use maximum technology in the field in the cropping you know in the I mean the as far as Pakistan is concerned the maximum of you are using the labor अभी वही मवेशी इस्तेमाल कर रहे होते हैं अभी वही लोग सुबह से शाम तक इसमें काम कर रहे होते हैं अब देखा होगा यूरोप में फार्मर के स्टाइल देखेंगे वो जनाब डिफरेंट स्टाइल होता है यहाँ पे बेचारे technology definitely so therefore that depends upon the economy but either whatever there is a science of economy one thing you should keep in mind that हमारा हमेशा टारगेट होता है कि जो भी यूज करें लेबर यूज करें कैपिटल यूज करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी रिड्यूस्ड you check it whether labor is best to minimize the cost, capital is best to minimize the cost, or we should use the best combination of labor and capital. Least cost combination labor and capital. वो combination use करेंगे जिससे cost of production कम से कम। Cost of production कम से कम होने का मतलब ये profit ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि resources का सही इस्तेमाल हो रहा है। Economy कैसा है? Efficient allocation of resources. We have scarcity of resources, so therefore those scarce resources should be efficiently. So, how to produce here is we should use the least cost combination of labor and we talk for whom? For whom? The target market. Ultimately, the target market. Target market. किसके लिए? For local, national, or international scale. For where you are in Middle East, you are in Africa, you are in South America, or you are in Asia. You are in Asia. So then which market we are going to explore? We are going to explore the Asian market. We are going to explore the European market. So therefore, according to that, we maintain the standard of the product. ऐसे होता है ना हमारे मुल्क में लोकल मार्केट है तो लेबर में लपेट के उनको मार देंगे हमारे चाहिए हमारे नॉर्म्स ऐसी हैं हमारा एटीट्यूड ऐसा है बस as far as you have a international market आप पूरे नेशनल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा अदरवाइज दे विल रिजेक्ट योर प्रोडक्ट पैकेजिंग एवरीथिंग क्वालिटी इशू मेंटेन अमेरिका आपका टारगेट मार्केट है आप कुछ भी नहीं मोमबत्ती बेच रहे हैं अमेरिका लेकिन अगर उस मोमबत्ती के ऊपर लेवलिंग के ऊपर ओसामा बिन लादेन की तस्वीर बना देना नहीं चलेगा ठीक है ना खाने काबा की तस्वीर बनाते हैं लेकिन अमेरिका टारगेट मार्केट नेवी के so we should focus we should consider the demographic factor the attitude the psychological factor of the business
how technologically you can convince them to purchase new product. वो उस law and order उस मुल्क की जो ना गवर्नमेंट की पॉलिसी everything we have to monitor. Actually प्रोडक्ट को so इसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको देखना पड़ता है टारगेट मार्केट कौन है उस लोगों का नेचर क्या है लोगों का क्या है कंज्यूमर बिहेवियर so not only the consumer behavior as well as the government policy तो वो बढ़ते हैं ना में 5 feet चले आप फोर करते होंगे चले फोर तो 5 feet है हाँ 5 feet जो बढ़ते हैं प्रोडक्ट Packaging matter a lot. Post promotion is like communication. How to convince someone to use this product. The channel of communication is the strategy that you adopt to educate someone to consume your product. वो फिर बिलबोर्ड्स है अखबार के थ्रू एड के थ्रू बिलबोर्ड के थ्रू और डिफरेंट स्ट्रेटेजी है जो टाइम टू टाइम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है टू कम्युनिकेट द कंज्यूमर फिर टेलीविजन में जो एडवर्टाइजमेंट सारे होते हैं उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर कि आपका टारगेट मार्केट क्या है टारगेट मार्केट सिंध है तो आप एड में उस तरह का कल्चर दिखाते हैं टारगेट मार्केट कराची जैसे मॉडर्न सिटीज है तो आप इस रूट पे पहने हुए ऑफिस जाएंगे टाई उतारते हुए देखा होगा आपने ठीक है ना खातून भी बड़ी स्मार्ट से दिखाते हैं डिफरेंट जो शहर में जिस तरह के ड्रेसिंग करते हैं उस तरह के ड्रेसिंग है अदरवाइज पंजाब का होगा तो कुछ नजरा पहने हुए होंगे टोपी पहने हुए होंगे अंदाज बयान में होते होता है नवा आया है ना टारगेट मार्केट पर चाय का कमर्शियल आता है पंजाब में देखते हो घोड़ा थोड़ा घोड़े पे बैठ जाता है कराची वाले घोड़ा उसका टारगेट मार्केट नहीं है ना कि वही प्रेसिंग होता है नवा आया है खा गया है देखा कि एक वो है होटल है क्या कहीं मोटल जो हाईवे मोटल है बैठे में है पूजी करके चाय ला रहा है बड़े से इसमें चूल्हा चल रहा है और लोग चाय सिटी टारगेट को नहीं एनवायरमेंट को नहीं बता रहा है कि योर टारगेट मार्केटिंग का मॉडल इन बिग सिटी नॉट ओनली दैट दे यूज यामाहा मोटरसाइकिल ज्यादातर पंजाब के गांव में इस्तेमाल होता है अक्सर देखिएगा कि वो पकड़ लड़ा रहा है ये पकड़िया का है तो जगह नहीं है करनाने की जगह नहीं पकड़िया का देयरफॉर अब स्पिरिट का कमर्शियल देखा है बड़ा सा ड्राइंग रूम खूबसूरत सा ड्राइंग रूम बैठ के आप अखबार पढ़ रहे हैं ये जैकेट वाली जैकेट चला रहे थे और 2 मॉडल खवातीन खड़ी हुई है यार देखा ना आपने अब ये गाँव के लोगों का ये This is not my job to teach you the marketing strategy, but this is the way how we can open our views, our so therefore, जब आपको पता होगा किसके लिए बना रहे हैं आप उसी हिसाब से स्क्रीनिंग होगी उसी हिसाब से उसकी लेवलिंग होगी उसी हिसाब से उसका टेस्ट डेवलप करेंगे ठीक है ना उसी हिसाब से आप उसका कलर डेवलप करेंगे उसी हिसाब से आप लेवल कैपिटल यूज करेंगे तो therefore इट मीन आप जो है अपने अवेलेबल जिसका अगर ये सारे सवाल का जवाब आपके पास है इसका मतलब है आप यू नो द बेस्ट यूटिलाइजेशन are getting me any problem so therefore that's why we say that how I mean what the meaning of marketing and what the meaning of economics these 3 questions generally are the 3 big questions in microeconomics घर से घूमता नहीं खुदा घर से फोन आता है तो मेरे घर वाले फोन बहुत कम करते हैं एक मिनट दे मेरा खत्म well what to produce how to produce and
produce? Very good. Where to produce? हाँ प्रोड्यूस करेंगे. शुगर इंडस्ट्री है. मेरा शेर घर में नहीं लगेगा पढ़ाई में. समीर आगे कौन है घर से आता है ये फिर और मुझे दे टॉपिक के नाम दिया वो देखो क्या है बंद कर दो. तो एक होता है when to produce and then where to produce. Where to produce. And definitely when at work of time. Grammar English में पढ़ते हैं. This is what basically we are talking about the time. Like specific time period. अभी आपका टेस्ट है. रमजान का महीना है तो पकौड़े की ज्यादा डिमांड है. रमजान गुजर गया तो नहीं होगा. So therefore we talk about अभी ये महीना आया है अगस्त का तो राखी की डिमांड है. हम जो कि रक्षाबंधन का दिन तो राखी की डिमांड ज्यादा होगी. ये टाइम गुजर जाएगा तो नहीं होगी. तो हर एक का स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है. सर्दी है तो आप वुलन क्लोथ प्रीफर कर रहे हैं. जब गर्मी शुरू हो जाएगी तो देन डाउन कहते हैं. क्या बोलते हैं डाउन कहते हैं. So therefore we demand cotton. Cotton. ठीक है ना. तो therefore गर्मी में आप लेदर जैकेट बना के बेचना शुरू कर दें. Nobody will. So therefore there should be a specific time when there is a demand for the goods. So there we should produce accordingly. So we cannot ignore this one, that time period. अब इसका मतलब है कि अगर आपने when को इग्नोर कर दिया और गर्मियों में गर्म कपड़े बनाने लग गए तो रिसोर्सेज तो जाया कर दिया. So therefore we cannot ignore this. Same question, the fourth question. And where to produce? And definitely whenever we talk about where to produce means where the productions are easily available. इसी मिसाल में आपको देखा होगा समझ में आने की बात दिखेगा. मिसाल के तौर आप you are engaged in the production of sugar चीनी बनाते हैं आप. अब चीनी के लिए क्या है कि आपका जो है गन्ने का खेत है. फॉर एग्जाम्पल पंजाबी गांव में और चीनी की फैक्ट्री है कराची में. अब क्या होगा अगर गन्ने के खेत पंजाब से शुगर मिल जो आप लेकर अगर कराची के फैक्ट्री तक आएंगे तो आधे से ज्यादा गन्ना तो सूख जाएगा रास्ते में. ट्रांसपोर्टेशन का वेरिफिकेशन का अलग मसला है. अब कराची जैसे बिगेस्ट सिटी में एडवांस सिटीज में इस तरह के चीप लेबर कहाँ से मिलेंगे. गन्ना किस लगाएंगे आप कैसे हो सकता है. So therefore it's better to locate the factory near to the field. So therefore instead of establishing the factory here we should establish factory near to the field. गन्ना यहाँ से आया ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीजें वेस्टेजेस एवरीथिंग and you can utilize your resources. So therefore we talk about where to produce. It's very simple. I mean the goods and services to be produced the place where factors of production are easily available, so that the cost of production could be minimized. मेरी बात समझ में? Yeah. मैं एग्रीगेट तो नेट तो लॉस हो गया ना. आधा रिसोर्सेज आए हो गया जो मेन प्रोडक्शन की शुगर नहीं होता है. सप्लायर के पास
पंजाब की किसी भी हो, सप्लाई तो करनी करना, लेकिन करना तो करना है। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे तो आधा प्रोडक्शन होगा, आधा करना खराब हो गया, उसके लिए अलग कॉस्ट होती है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ से आपने फ्रेश मिलेगा, फ्रेश शुगर से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ से करेंगे तो लेबर इतना मिलेगा 500 का मिलेगा, यहाँ उसका 100 में लोग काम कर काम। Got it? Yes. So don't ignore these two remaining questions as well. These two are very important. आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या? Honestly. अच्छा, एक चीज है, वही है कि I talked about you number of economic variables. Price, demand, supply, inflation, income, consumption, investment, interest rate. All these basically are the variables, generally known as economic variables. ये सारे economic variables है ना? ये जो variables होते हैं, ये variables के दरमियान में relationship होता है। क्या इन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, या इन दोनों के दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, या कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। इसके दरमियान में रिलेशनशिप नहीं होते उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। When you talk about these variables are dependent, तो डिपेंड पॉजिटिवली डिपेंड करेगा या नेगेटिवली करेगा। अगर मैं कहता हूँ प्राइस और डिमांड डिपेंडेंट है, मुझे सबको पता है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब कम खाते हो चीजें महंगी हो गई, आप कम खाते हो, इसका मतलब है प्राइस और डिमांड इनके साथ डिपेंडेंट तो है, लेकिन इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। वन इंक्रीजेस अदर डिक्रीज। कहता हूँ यार कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सबको पता है डिपेंडेंट है। आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, आपकी इनकम कम हो जाएगी तो मतलब कंजम्पशन एंड इनकम आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। इनके दरमियान में रिलेशनशिप पॉजिटिव है। वन इंक्रीजेस अदर, वन डिक्रीजेस अदर। याद रखिएगा कि से ए एंड बी आर द टू वेरिएबल्स। अब ए बी के फॉर्म में बात करो, नाम के फॉर्म में नहीं, इन्वेस्टमेंट सेविंग कंजम्पशन डिमांड। जस्ट टू से ए एंड बी आर द टू वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मुमकिन है ए के बढ़ने से बी भी बढ़ जाए, मुमकिन है कि ए के कम होने से बी भी कम हो जाए। अगर ऐसी सिचुएशन है इंक्रीज डिक्रीज, तो ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्टली। वन इंक्रीजेस अदर इंक्रीजेस, डायरेक्ट रिलेशनशिप। वन इंक्रीजेस अदर इंक्रीजेस, पॉजिटिव रिलेशनशिप। और डिक्रीज डायरेक्ट रिलेशनशिप। ए एंड बी आर द टू वेरिएबल, एक बढ़ गया दूसरा कम हो गया, एक कम हो गया दूसरा बढ़ गया। इंक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज, नेगेटिव रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। ए एंड बी टू वेरिएबल्स, एक बढ़ गया दूसरे में कोई चेंज, एक कम हो गया दूसरे में कोई चेंज नहीं, एक बढ़ गया कोई चेंज नहीं, एक कम हो गया दूसरे में कोई चेंज नहीं। Increase no change, decrease no change, increase no change, decrease no change. But think, so therefore there is a direct relationship, there is a negative relationship, inverse relationship, independent, आजाद है, दोनों का आपस में कोई relationship, no relationship. So therefore when we talk about an economic variable and whenever we study the relationship between the variable, तो लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। उन वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, नजर आ रहा है रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को that relationship could be illustrated with the help of the curve, that could be analyzed with the help of the graph. रिलेशनशिप को हम ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना? और तो कैसे शो कर सकते हैं ये जो रिलेशनशिप है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नो रिलेशनशिप, व्हाटएवर मे बी, we could explain those relationships with the help of the graph. So therefore, let's study how could we explain those relationships graphically. So therefore, write down the heading of background. Independent relationship
सफर तो करो ना यार, जो बच्चों की तरह है, ईद का कपड़ा सिल के आ गया, 15,000 को कह रहे हैं कपड़े नहीं, मैं वही पढ़ाने जा रहा हूँ छोटू। हेडिंग डालिएगा मेकिंग यूजिंग ग्राफ इन कॉलम। ग्राफ को बनाते हैं कैसे यूज करते हैं, मेकिंग यूजिंग ग्राफ इन इकोनॉमी। मेकिंग यूजिंग ग्राफ इन इकोनॉमी। अल्फा समझ में आ रहा है? बनाना, इस्तेमाल करना ग्राफ का इसमें आप लोगों को परेशानी करी हुई इकोनॉमिक्स पढ़ने। If you feel realize easier than the way I'm teaching, so kindly so that I may adopt the same way which you desire. आपको अगर ऐसा लगता है कि इससे भी कोई आसाना है, आप पढ़ सकते हैं, तो मुझे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उस अंदाज को अपनाने। But our mutual objective is the best utilization of our time. The best utilization of our time. चार तरीके हैं भाई ग्राफ को पढ़ने के, ग्राफ को समझने के, यूटिलाइज करने के। नंबर 1, पॉजिटिव बिटवीन द वेरिएबल, जो हम डिस्कस कर रहे थे कमेटी में। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप। नंबर बी, नेगेटिव रिलेशनशिप द वेरिएबल, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप। Negative relationship between the variables. Number C, no relationship between the variables. No relationship. No relationship बोले तो independent है। I mean, yes, independent है। ठीक है? And number 4, maximum and minimum. Have a maximum and minimum. Have a maximum and minimum. What I said, the positive relationship, negative relationship, no relationship, maximum and minimum. आइए एक एक को अलग अलग अच्छी तरह से इंटरप्रेट करते हैं विद एग्जाम्पल, विद जनरलाइज एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल। एक एक चीज को एनालाइज करते हैं, सिक्योरिटी ग्राफिक के लिए इंटरप्रिटेशन करते हैं, ताकि आपका एक साउंड बैकग्राउंड बन जाए। ग्राफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज पॉजिटिव। We are talking about एक चीज याद रखिएगा, पॉजिटिव। I say again, I can do the same example. For example, I say x and y are the two variables. In generalized form first, then we give the example. Okay?
X and Y are the two different variables. I say the positive relationship, direct relationship means the things are moving in the same direction. If X increases, Y increases. Things are moving in the same direction. I say X decreases, Y decreases. दोनों कंडीशन में दोनों की रिलेशनशिप को पॉजिटिव है. I say income increase. Your money income, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी. जब आपकी आमदनी बढ़ जाएगी तो आपके अखराजात बढ़ जाएंगे, आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी. So their income increases, therefore consumption. I income decreases, consumption decreases. So this is what basically one of positive relationship. One increase, दूसरे पे करना, other increase. One more example might be technical, but I will try to make it. So interest rate. I get. आपके पास पैसा, बहुत पैसा. आप मुझे बताइए, मतलब आपके पास सेविंग है. सेविंग है ना, बचत है. आपके पास सेविंग, थोड़ा सा नहीं है. आप बताइए मार्केट में बहुत थोड़ा इंटरेस्ट मिल रहा, आप बैंक में रखोगे नहीं रखोगे? अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, क्या करोगे आप? बैंक में रख दोगे, क्योंकि आपको बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है. कंज्यूमर बिहेवियर, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तो आपकी सेविंग है वो भी बढ़ जाएगी, उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन वो घर में रखने के बाद बैंक में रखेंगे. इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द सेविंग सप्लाई, सेविंग की सप्लाई. बट as your interest rate, as the market interest rate increase or interest rate increase, you will supply more savings. अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो आपकी सेविंग सप्लाई, instead of deposit with the bank, you prefer to hold money at your hand. क्या इसका थोड़ा मिल रहा है फिर आपको पता नहीं डाल तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है. So therefore, when the interest rate increase, the interest rate जब नीचे जाएगा तो सेविंग को नहीं, सेविंग नीचे नहीं जाएगी. आपके पास आप बैंक से हो सकता है विड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाए तो बेटर ही पैसा निकाल लेंगे. नहीं होगा ना अगर नीचे अंकल. सेविंग तो फिक्स है. मिसाल के तौर पर आपकी 1000 रुपए आपकी इनकम थी, 700 रुपए खा लिया, रुपया सेविंग कर लिया. ये दो ऑप्शन है, या अपने पास रखें या बैंक में रखें. अगर बैंक से थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा तो आप अपने पास रखेंगे, अगर बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो आप बैंक में रखेंगे. सप्लाई सेविंग जो की उसकी सप्लाई करेंगे. कुछ भी नहीं मिलेगा. तो मैं देखिए मेरी आदत होती है मोटी मोटी बातें आराम से, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सिखाना. इंटरेस्ट समझ, इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट को हम ये क्या है, ये आपका पैसा है, ये क्या है, ये आपका कैपिटल है, ये फाइनेंशियल कैपिटल है आपका. क्या बताया था, ये फाइनेंशियल एसेट है या फिजिकल कैपिटल है आपके. और इंटरेस्ट जो होता है ना वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसको और प्योर लैंग्वेज में कहते हैं इंटरेस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. या घर पे रखूंगा तो ज्यादा फायदा है या बैंक में रखूंगा कि ज्यादा फायदा है. वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फायदा. यार बहुत थोड़ा इंटरेस्ट मिल रहा है, बेहतर है घर रखने की. टॉकिंग अबाउट योर फायदा. यार बैंक में ज्यादा पैसा मिल रहा है, सुनिएगा हर आदमी का अलग है. वो इंटरेस्ट आपके लिए कम हो, किसी की वही ज्यादा हो, तो सप्लाई. इन नेट इफेक्ट इज दैट कि एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, ये लॉज है. मैं अभी लॉ पढ़ाने में कहना चाहता हूं. अब एक और then of course more I forget I think आपकी जब इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग भी तो बढ़ती है.
पहले कुछ नहीं होता था यार, इनकम खा भी रहे हैं, बचा भी रहे हैं, क्यों? इनकम बढ़ा। So therefore, as your income increase, your selling increase, and as your income decrease, your selling decrease. Any problem? So therefore, this is what basically I mean the positive relationship between the variables. यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, यहाँ से बात अब शुरू। Since there is a positive relationship between the variables, those relationship could be explained with the help of the curve. Is it? ये making using graph, अभी तो मैंने ग्राफ की बात भी नहीं की। अभी तो हमने बताया है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसा होता है, एक चीज के बढ़ने से वो चीज कौन सी है, वो इनकम हो सकता है, वो कंजम्पशन हो सकता है, सेविंग हो सकता है, वो इंटरेस्ट रेट हो सकता है, वो प्राइस हो सकता है, वो सप्लाई हो सकता है। Now my dear students, those relationships could be explained with the how do we explain those relationships graphically? You see. ये वेरिएबल y है, ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल y है, ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल y है, ये वेरिएबल x है। जब भी हम कौन सा रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव। When we are studying positive relationship, we are expressing a positive relationship graphically. You remember one thing, always the line moves from left to the right up. If you see, oh, the line is moving from left to the right upward, it means that line is explaining the positive relationship between the variables. Whatever the variable along y-axis is connected. Whatever may be the kind of variables along x and y-axis. Since the line is moving from left to the right upward, that shows a positive relationship between the variables. And of course, the line is moving from left to the right upward. You see? And of course, the line from all these three lines are moving from left to the right upward. तीनों को देख रहे left to the right upward. तीनों की टेंडेंसी का फर्क है, इसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं तीनों का स्लोप डिफरेंट। So therefore all these three lines are moving from left to the right upward, but there is a one difference. This line shows a positive relationship, this line shows relationship, this line shows a positive relationship. Why? Because all these three lines are moving from left to the right upward. But the difference, there is a difference in these three lines. There is one difference. That difference is basically is due to change in slope. Slope, जब हम बात करते हैं slope की, slope जो होता है change in y over change in x. जब आप इस वाले कर्व में आएंगे, जो भी आप पॉइंट टू पॉइंट मूव करेंगे, change in y will always be equal to change in x. अगर इस वाले करेंगे, लेस स्टीपर है ये स्टीपर है, ये लेस स्टीपर है, ये लेस स्टीपर कर्व में आएंगे, इसे स्ट्रेट लाइन, दिस इज फॉर द लेस स्टीपर में आएंगे, तो चेंज इन x इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन चेंज इन y. ये चीज आपको आनी चाहिए, मैं और when we move from this one, so therefore change in y will be greater than, जब स्टीपर होता है तो y में चेंज ज्यादा आता है। अब लेकिन आप वैसे देख लीजिए ना भाई, आप यहाँ से यहाँ आ जाइए, दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ, आपको खुद नजर आएगा। देखिए पहले x में चेंज थोड़ा सा, देखिए x में चेंज ज्यादा है, तो आप लाइन को पुट करके यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, देख रहे हैं आप, चेंज इन y इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, तो y बढ़ता जा रहा है और x में आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आ जाएगा कि x में चेंज खत्म हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, चेंज y में चेंज बढ़ता चला जाएगा, y में चेंज बढ़ता चला जाएगा, y में चेंज, और x का चेंज छोटा होता है, देख रहे हैं आप, x का चेंज श्रिंक हो रहा, y का चेंज बढ़ रहा, चेंज इन y will always be greater than change in x. So therefore इतना तो मैथ आता है आपको, चेंज इन y और चेंज इन x है, अगर दोनों में चेंज बराबर होगा तो स्लोप हमेशा बना है, जो ऊपर है वो नीचे डिवाइडेड मल्टीप्लाई
समझ में आया? So whenever we talk about a straight line, the slope will be 1. इसे कहते हैं आप constant slope. The constant. तो straight line है, line देखिए मुश्किल लग रहा है क्या? Line देखिए left to the right upward move कर positive relationship with forward motion. Constant slope की conditions क्या होती है? X में change और Y में change. Line is moving from left to the right upward, positive relationship. Positive relationship with decreasing slope. Decreasing slope क्यों है? जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही हो, ऊपर वाली वैल्यू कम हो रही हो, तो नेट रिजल्ट कम होता चला जाएगा. So therefore, positive relationship with decreasing slope. यहाँ भी क्या हो जाएगा? Positive relationship with decreasing slope. तो देखा आपने कि अब समझ में आ रही बात कि positive relationship हो सकता है 5% इनकम बढ़ा, 5% कंजम्पशन बढ़ा. लोगों का बिहेवियर है, लोग नहीं है, लोगों का बिहेवियर है. 5 इनकम बढ़ा, 3% से कंजम्पशन बढ़ी. इनकम में ज्यादा चेंज है. 5% से इनकम बढ़ा, 10% से कंजम्पशन बढ़ गया. बिहेवियर है. थोड़ी इनकम बढ़ जाती है, बहुत का खाने लगते, लोन लेके बोरो करके कार खरीद लेते हैं, उस पे चले जाते हैं, लोन पे खरीद लेते हैं. ठीक है ना? लोन लेके एचडीएफसी से घर बनाने लगते हैं. इनकम में थोड़ा इजाफा हुआ था या कंजम्पशन होता है ना? तो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल बिहेवियर. इट्स लोन नहीं है. दिस इज कॉल्ड द इंडिविजुअल बिहेवियर. हमें जो आपका रिस्पॉन्स है इक्वल है. समटाइम आपका रिस्पॉन्स जो है कम है, समटाइम आपका रिस्पॉन्स जो है बहुत ज्यादा है. जो रिस्पॉन्स विद द मार्केट, your consumption with income, consumpting with income, everything, anything could be. So therefore, a slope है that shows a tendency in the change in consumer behavior, how consumers respond to the changing value, how the market responds. तो देखा आपने पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन तीनों लाइन पॉजिटिवली मूव कर रहा है. I mean the line is moving to the right upward line left to the right होगा तो positive. But the change in movement along the curve is due to change in slope of the line. Any problem?